A warm morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School, and I am your social science teacher. So, students, today we all are going to start our new chapter from your geography textbook, and the name of the chapter is Our Country, India. Our country, our nation, India. We talk about the geography of India in this particular chapter. Okay, so India, as you all know, India is a very unique country and it has a vast geographical expanse. Vast geographical मतलब बहुत फैला हुआ है. We can see varieties of physical features here as India is seventh largest country in the world. Area wise, India is the seventh largest country in the world. So its geographical expanse is very vast. We can see varieties of physical features, relief features here, varieties of landforms here, in particular in India. Okay, so in the north, you all are very much aware about the directions. We talked about direction in our previous chapter. So just look at the map of India. If we talk about direction here, this portion is north area. Okay, ये जितना portion है north है. This portion is south. This portion is west, जो गुजरात का, राजस्थान का part है. ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ part है, ये west है. And this north eastern states, मतलब इस direction में जितने भी हैं आपके ये east है. Okay, so north, south, east and west. North में we have Himalayas. ठीक है, इंडिया में क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में हम हिमालयस की रेंज हमें देखने को मिलती है. वी कैन सी हिमालयन रेंजेस हियर, वी कैन सी हियर हिमालयन रेंजेस है. ठीक है, साउथ में व्हाट वी सी, साउथ में हमें इंडियन ओशियन देखने को मिलता है. वी कैन सी इंडियन ओशियन एट द साउथ. वी कैन सी अरेबियन सी ऑन द वेस्ट डायरेक्शन में हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है. एंड ऑन द east direction we can see Bay of Bengal. We can see Bay of Bengal on the east direction. Now India, why do we call India a subcontinent? Because जो इंडिया है, मतलब थ्री साइड से ओशियन से दूसरे लैंड से क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है. और नॉर्थ साइड से हिमालयन रेंजेस से क्या हो रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सबकॉन्टिनेंट. मतलब इट इज लाइक इट इज अ डिफरेंट लैंड फॉर्म. ठीक है, एक अलग से लैंड फॉर्म है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. एक अलग से इसका जो लैंड है वो अलग हो रहा है रेस्ट ऑफ एशिया से. जैसे हमने देखा कि नॉर्दर्न से आपका हिमालयन रेंजेस आ जाता है तो वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, अब वेस्ट में अरेबियन सी है तो दूसरे पार्ट से वैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में अपना इंडियन ओशियन है. ठीक है, अब देखते हैं क्या है आगे. Yes. So the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south wash the shores of the Indian Peninsula. Wash the shores. Shores का मतलब होता है edge. You can say edge near the sea. ठीक है, लैंड अलोंग द एज ऑफ द सी, जो पास की समुद्र तट जो बोलते हैं हम. जो कोई भी ओशियन वाटर है, रिवर वाटर है, सी वाटर है, उसके पास का जो एरिया होता है, उसके पास की जो लैंड होती है, उसको हम शोर्स बोलते हैं. ओके, हिंदी में बोले तो समुद्र तट बोल सकते हो आप. ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, नाउ देयर इज अ टर्म called peninsula. What do you mean by the term peninsula? Peninsula means a land which is surrounded by water on three sides. ठीक है, थ्री साइड से एक ऐसी लैंड जो तीनों साइड से पानी से घिरी हुई हो. ठीक है, उस टाइप की लैंड को हम पेनिनसुला बोलते हैं. नाउ जस्ट लुक एट द एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया इज अ लैंड. ठीक है, ये देखो, दिस इज द लैंड पोर्शन ऑफ इंडिया. In the west we have Arabian Sea, in the south we have Indian Ocean, and in the east we have Bay of Bengal. अब देखो, इंडिया तीनों डायरेक्शन से पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसलिए we call India as an Indian peninsula. Okay, because
because India is surrounded by water from all by water on three sides. तीन साइड से जो है वो पानी से घिरा हुआ है. So the peninsula is a piece of land that is surrounded by water on three sides. Now एक होमवर्क है छोटा सा आपके लिए. You have to find out any one country which is also a peninsular country. ठीक है, except India. इंडिया का एग्जाम्पल नहीं देना है. इंडिया के अलावा आपको एक ऐसी कंट्री बतानी है. कल पूछूंगी मैं आपसे कि जो तीन साइड से पानी से घिरी हुई है, जो पेनिनसुलर कंट्री है. You have to find out the name of the country which is surrounded by water on three sides. तीन साइड से जो पानी से घिरी हुई है और एक साइड से लैंड है उसका. ठीक है, या हिमालयाज बोल दीजिए या लैंड बोल दीजिए या फिर कोई भी माउंटेन रेंज हो सकती है. ओके, sorry, I will ask about it tomorrow. ठीक है, research about it. I will ask about it tomorrow. Okay. So now India has an area of about 3.28 million square kilometer. 1 million is equals to 10 lakh. Okay. So India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extend from Ladakh to Kanyakumari. Ladakh to Kanyakumari, this is Ladakh and this is Kanyakumari. If we go to the extent from north to south, north में हमारा extent क्या है? लद्दाख, ये point है. south में कौन सा extent point है? हमारा land के लिए पूछ रहे हैं हम, ये वाला point है. ठीक है, तो देखो कन्याकुमारी से लद्दाख से कन्याकुमारी तक हमारा नॉर्थ एक्सटेंट है और इसका अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स का इसका डिस्टेंस है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द वेस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट का हमारा अरुणाचल प्रदेश है एक्सटेंट जो एकदम फार्देस्ट पॉइंट है और वेस्ट का गुजरात में है. ठीक है, ये देखो अरुणाचल प्रदेश से अगर हम गुजरात तक का एरिया डिस्टेंस देखते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर. 2900 किलोमीटर का है. ये थोड़ा सा यहाँ से आएगा. ठीक है, हम 2900 किलोमीटर तक का एक्सटेंट है. तो ऑब्वियसली सो मेनी लैटिट्यूड, सो मेनी लॉन्गिट्यूड्स वी कैन सी है. तो बहुत सारे टाइम चेंजेस आते हैं, अलग अलग हमें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं बिकॉज इंडिया इज लाइक 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड इट्स एक्सटेंट इज इट्स टू मच एक्सटेंडेड. सो दैट्स व्हाई. ओके, the lofty mountains. Lofty, I already told you the meaning of lofty. Lofty means tall, giant, something which is like very tall, which is very giant and strong. बोलते हैं ना सख्त बुलंद. ठीक है, the lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coasts and island present a diversity of landforms. Diversity means variety. We can see different physical features in India. देखो अब देखो we can see mountains. हम mountain regions देखते हैं इंडिया में. We can see mountains here. ठीक है, we have mountains in India. We have deserts in India. ठीक है, deserts है. ये देखो just look at this राजस्थान पोर्शन जो हम देखते हैं. This is desert area. ये वाला एरिया देखते हो आप, ये वाला एरिया, ये है अपना कोस्टल एरिया जो समुद्र के पास वाली जो पास का जो लैंड होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं. ठीक है, कोस्टल एरिया. वी हैव प्लेटू. ये वाला जो एरिया है वो हमारा पूरा अनइवन प्लेटू है, एरिया है. This area, this is northern plain area. Islands, we have islands also. Two groups of islands we have in India, Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands. These are the two groups of islands. So we have varieties, we have diversity. We have diversity of landforms in India. Okay, so there is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. So obviously we have varieties in climate also. We have different types of landforms. So that's why we have diversity in climate, diversity in vegetation. Vegetation का मतलब plants होता है. Small plants से लेके बड़े से बड़े plants को हम vegetation बोलते हैं. Forest area बोल सकते हैं. So we have different types of
forest present in India. We have variety, diversity in flora and fauna, या फिर wildlife बोल दो, wildlife, fauna. Fauna is the term used for animal species. जितने भी animal species है उसके लिए हम fauna term use करते हैं. तो we have wildlife also. Different types of wildlife also, as well as in language also. अगर हम राजस्थान के अभी 5-10 किलोमीटर आगे चले जाए ना, तो हमें लैंग्वेज में भी बहुत सारी डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगी. So we have differentiation, varieties in language and culture also. Like अब राजस्थान में हम we are celebrating, suppose राजस्थान का एक particular एक फेस्टिवल लेते हैं गणगौर. We are celebrating गणगौर in राजस्थान. और वही बहुत सारे लोग जो है महाराष्ट्र में क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन महाराष्ट्र दे आर सेलिब्रेटिंग गणेश पूजा, ठीक है, गणेश चतुर्थी दे आर सेलिब्रेटिंग. मतलब हर एक स्टेट का अपना खुद का कोई यूनिक जो फेस्टिवल है, ठीक है. वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं दुर्गा काली पूजा बहुत ज्यादा मानी जाती है, ठीक है. दशहरा को बहुत ज्यादा धूमधाम से उनका मेन फेस्टिवल माना जाता है. तो we have varieties even in the language and culture also. So in this diversity, हाँ हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं because India is a secular country. हम किसी भी एक particular religion के लिए को प्रमोट नहीं करती है हमारी गवर्नमेंट. हम हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं and this is the beauty of India. Like we all celebrate all the festivals very enthusiastically. We all like it very much. ठीक है, जैसे आज मकर संक्रांति, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी चाहे जैन हो, सिख हो, कोई भी रिलीजन का, they all are celebrating it very enthusiastically. Okay, so we have like different types of festivals. We celebrate different types of festivals in India, and this is the very beauty of our very own nation, India. So in this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. और ये जो diversity है ना, वही हमारी सबसे बड़ी unity है. Unity means एकता. हम ये जो हमारे जो differentiation है वही हमें आपस में जोड़ के रखते हैं. हम different traditions को follow करते हैं. Like देखो, I am what I am. मतलब my religion, मतलब by birth I am जैन, ठीक है, मैं जैन रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, बट आई एम सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स हियर. चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे वो मकर संक्रांति हो, आई एम सेलिब्रेटिंग ऑल द ट्रेडिशंस. चाहे वो गरबा क्यों ना हो, जो दुर्गा पूजा क्यों ना हो, and I enjoy all the festivals. So ये जो हम different cultures को follow कर, मतलब different traditions को हम enjoy करते हैं, और यही हमें क्या करते हैं, unite करके रखते हैं. India has a population of more than 120 crores. It's 20 crores since the year 2011. India की जो population है 120 crores है. अब obviously एक particular figure नहीं दे सकते हैं because ये हर एक second में जो है ये population चेंज होती रहती है. तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ है, और ये 2011 का सेंसस है. एंड इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड जो हमारा जो लैंड एरिया है ना, विच इज अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमारा जो पूरे वर्ल्ड में हम 2.2% ऑफ द टोटल लैंड हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं. वी हैव विद अस, इंडिया के पास 2.2% टोटल लैंड है अर्थ की. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोकेशनल सेटिंग्स. India is located in the northern hemisphere. You all are very much aware about the hemispheres. In your very first chapter, we talked about hemispheres, longitudes and latitudes. Suppose this is the miniature figure of Earth, and I draw equator here, okay, which divides the Earth into two equal parts. The upper part, the northern part, is northern hemisphere. ये आपका northern hemisphere है. And this is your southern hemisphere. Okay, and India कहाँ पे लाई करती है? India देखो यहाँ पे कहीं पे लाई करती है, यहाँ पे कहीं पे लाई करती है India. ठीक है. So
sorry, India is located in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. There are 5 important latitudes of the earth, and it is obviously imaginary lines which we have drawn for our convenience. Just give me a second. Let me draw it for you. This is equator at 0 degree Celsius, 0 degree. This is Tropic of Cancer, and this is Arctic Circle. This is Tropic of Capricorn at 23.5 degree, and this is Antarctic Circle. Okay, so India कहाँ पे lie करता है? India lies here. Okay, and approximately India जो है Tropic of Cancer जो है India के center से pass करता है. It crosses halfway through our country. Okay, we have the figure also, that is 7.2. Just look at this map. Just look at this map. This is Tropic of Cancer. This very dotted lines. These dotted lines. ये देखो, मैं आपको लिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ. व्हाइट कलर ले लेते हैं तो थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. ये देखो, दिख रहा है सबको? आई बिलीव दिख रहा है. थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है लाइन, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. ये वाली लाइन. सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और आप देखो इंडिया को अप्रोक्सीमेटली इंडिया के सेंटर से वो क्रॉस कर रहे हैं. कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करते हुए जा रही है? गुजरात, राजस्थान का बहुत ही छोटा सा पार्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल. दिस इज बांग्लादेश, तो हम इसलिए इसको नहीं काउंट करते हैं. ठीक है, फिर आपका ये मिजोरम हो गया, और ये त्रिपुरा हो गया. 8 स्टेट से, इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? पास होती है 8 स्टेट से. ओके, so India lies in the northern hemisphere, and the Tropic of Cancer at 23.5 degree north passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extends between 8 degree 4 north and 37 degree 6 latitudes. Now just look at the map, or look at the map. जो India है, अगर हम नॉर्थ से देखें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका अगर हम लैटिट्यूड एक्सटेंट देखें ना, तो कहां से कहां तक है हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक. ये देखो, ये रहा 8 डिग्री. ये देखो, ये वाली लैटिट्यूड देखते हो ना, ये वाला लैटिट्यूड है अपना 8 डिग्री का. ठीक है, 8 डिग्री 4 से लेके ये वाला लैटिट्यूड, यहाँ पे जो लैटिट्यूड क्रॉस करता है वो 37 डिग्री का है. ठीक है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ. यहां तक हमारा साउथ नॉर्थ एक्सटेंट है. और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट. 68 डिग्री 7 ईस्ट मतलब ईस्ट कहाँ है? ये डायरेक्शन है. तो अगर हम यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे देखें, ठीक है, 68 डिग्री 7 ईस्ट क्यों बोलेंगे? देखो, ये हमारा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम ईस्ट है तो ईस्ट डायरेक्शन, खाली ईस्ट ही क्यों बोला है? वेस्ट भी तो बोल सकते हैं ना. तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है. वैसे तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. सपोज दिस इज आवर अर्थ. ठीक है, ये अपना इक्वेटर है, और एक प्राइम मेरिडियन भी तो पढ़ा था. ठीक है, तो नॉर्थ जो इक्वेटर है, इक्वेटर के अबव वाला हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. और इक्वेटर से नीचे वाला हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है. बट ये तो इक्वेटर है, और ये भी तो है. ये क्या है? प्राइम मेरिडियन है ना. तो प्राइम मेरिडियन, अब ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो यहां से ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट है ना. तो इंडिया जो है ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ईस्ट. ई लिख रहे हैं हम. ठीक है, सो ये देखो 68 डिग्री, ये 64 डिग्री हमें यहाँ दिख रहा है, और ये देखो ये 68 डिग्री है, यहाँ से लाई करता है. और 90
97 डिग्री 25 ईस्ट तक हमारा जो है लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है। कितना है? 97 डिग्री 25 ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? India belongs to eastern hemisphere. Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, अगर हम 68 डिग्री 7 east to 97 डिग्री 25 east तक अगर काउंट करें तो कितनी लॉन्गिट्यूड्स बीच में आ जाती है? About 29 degrees longitudes आ जाती है। And there could be a wide differences in local time of places. And we know it very well कि 1 डिग्री जब अर्थ 1 डिग्री रोटेट करता है तो उसमें 4 मिनट लगते हैं। तो सोचो 29 डिग्री से जो है हमारा 29 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा हमारे लोकल टाइम में। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 years। 2 घंटे तक का आपका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. I already told you कि जो local time change होता है 4 डिग्री, अर्थ अगर 1 डिग्री रोटेट करता है तो उसमें 4 मिनट्स लगते हैं। तो अर्थ 29 डिग्री का जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो डिफरेंसेस है, वो 2 घंटे तक का जो है 2 hours तक का जो है वो इन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। The sun rises about 2 hours earlier in the east. Suppose हमारे इंडिया अभी राजस्थान में 7:15 के अराउंड अभी जो है सनराइज होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में 5:15 के अराउंड ही हमारा सनराइज हो चुका था। ठीक है। और वेस्ट में गुजरात में वही उतना, जैसे गुजरात अभी मैंने बताया कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात में क्या होगा 7:30 के अराउंड सनराइज हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 5:30 के अराउंड हो जाएगा। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे कि हमारे हम सूटेबल रहे, एक कॉमन टाइम रहे, ज्यादा डिफरेंसेस अकर ना हो इस वजह से। This meridian or longitude is also termed as standard meridian of India, और इस मेरिडियन को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। हम अपने फर्स्ट चैप्टर में फिर से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, गिवन है ये वाला जो है ना, हम इस चीज को, लेट मी चेंज द कलर, ये वाला जो है, ये वाला हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लेते हैं, 82 डिग्री 30 ईस्ट को हम लेते हैं, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो है ये लॉन्गिट्यूड पास करती है। ओके, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास एवरीवन। Please go through the chapter, read the chapter very carefully till page number 48, and if you face any problem, do let me know. Chalo, bye bye, take care. No, one more thing which I have to tell you. Do you know large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard for whole country? For example, we have a single time, सेम टाइम फॉर द होल इंडिया, ठीक है। अगर सपोज अभी हमारे घड़ी में 9:20 है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी वही टाइम रहेगा, ठीक है, सॉरी, तमिलनाडु में भी वही टाइम रहेगा और गुजरात में भी वही टाइम रहेगा, ठीक है। पर कुछ कंट्रीज जो है वो इतनी चौड़ी, उनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतने सारे हैं कि वहां पे एक से ज्यादा भी टाइम जोन्स होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के एग्जांपल जैसे यूएसए एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली। इन यूएसए दे हैव 7 टाइम जोन्स, 7 टाइम जोन्स है। वहां पे सनराइज का जो टाइम है अलग है, मतलब होता तो ऑब्वियसली अलग ही होगा ना। कनाडा हैज 6 टाइम जोन्स, कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? नाउ दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट कि रशिया में कितने हैं टाइम जोन्स हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन्स हैं। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं आज के लिए, ठीक है। एक मैंने पहले ही दे दिया था आपको कि आपको फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था,
Yes, you have to find out the name of any peninsular country except India. The second one is how many time zones Russia have, and how many time zones Australia have. Thank you. Bye bye. Take care. ध्यान रखना अपना.